Hello, students. A very warm welcome to our YouTube channel, and I hope that you are fine, safe, and healthy. And as you already seen on the YouTube thumbnail, that which topic I am going to discuss here, it is sphere, and we are doing today 12 MCQs and 5 to 6 fill in the blanks regarding sphere chapter. Okay, and I hope that you know what is a sphere and what is its formulas: curved surface area, total surface area. Even as if it is solid sphere, that we can say that total surface area, and in case of curved is normal sphere, there is a curved surface area and total surface area almost same, and volume of the sphere. So I hope that you know this types of formula, because I'm not doing the chapters starting from the basic. I'm only going to discuss the MCQ question because this is a practice session. Okay, so how are you? Please tell in the comment box that what I already teached in this YouTube channel, it will be helpful for you or not. If it is helpful, then please inform me. If it is not helpful, then also inform me, so that when I make the next video, so I have to make I will solve that type of problem which will be helpful for you. Okay, now before starting the classes, at first I want to tell you something. As you already seeing on the screen, that YouTube classes is already going on: pure mathematics 11 12, mathematics 9 10, business mathematics and basic statistics, and also for the social science. Now for the classes 11 and 12, we you must watch Vidyarathi Academy channel. On that channel, I am taking class of class 11 and 12, pure mathematics and BMBS. While in Pawan Science and Math Lab, I'm basically teaching class 9 and 10. But for last 15 days, I hope that I'm already discussed only class 10 topics. So don't worry, class 9 topics is also I going to start again. And I suggested that, and I thinking that still most of the school has taken the second summative examination. That's why I'm not taking the classes. I'm just doing the practice session. But from the next week, or at the end of this week, I will again start taking few classes. Just like in physical science of class 9, I just thinking to start sound chapter. Okay, and after that, for class 10, periodic table one classes is still left. At first I have to complete that one. After that I will start laboratory preparation of ammonia. So no need to worry, students. We are trying to help you as much as possible. So there is one thing which I want from you, that is like, share and subscribe. So at first go and share all the your friend groups, your school groups, or your family group, to share this link, so that they can also join, and it is also benefit for them also. Okay, so let's start today class. And before wasting the time, come to the first question. Okay, the first question is visible in the screen right now on. And one another thing I'm going to tell you, that today class is in the bilingual. That means one question in the English and another question will be Hindi. Okay, so that it will be useful for both the categories of the student, for Hindi and English version. Okay, so no need to worry. So let's start. The first question is on the screen, is here. आई होप दैट इट विल बी वेरी हेल्प विजिबल फॉर यू. हिंदी में भी हम बोल दे रहे हैं अब. आप लोगों को आशा करते हैं कि स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा. क्वेश्चन क्या है? इफ द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर आर इक्वल, देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर विल बी. आपको बोला गया है कि कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का मतलब 4πr², और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का मतलब 4/3πr³. तो मतलब 4πr² को इक्वल कर देना है 4/3πr³. ठीक है. पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 4πr², और आयतन का मतलब होता है 4/3πr³. इसीलिए हमने दोनों फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया है, क्योंकि हिंदी वर्सन लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता होगा, इसीलिए हमने दोनों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अरेंज किया है. तो सॉल्व कीजिए आप लोग, और सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन में सॉल्व करने का आपको टाइम दें,
तो 1 घंटा के ऊपर हो जाएगा क्लासेस। तो हमको तो एक टाइम लिमिट है कि हम 30 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते हैं फॉर यूट्यूब सेशन में। तो इसी वजह से हम आप लोगों को आंसर बता दे रहे हैं विथ समझाते हुए, एनालिसिस करते हुए। आंसर आपका है 6 यूनिट। आप देख पा रहे हैं 6 यूनिट है, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है कि हम क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। और क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम अगर हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम आप लोगों को हेल्प करेंगे। ओके। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर देंगे। बस आपको व्हाट्सएप करना है, अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है, कौन से स्कूल में है और किस डिस्ट्रिक्ट पे है, जिससे मुझे पता चले कि आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। ओके। तो इसका आंसर देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं 6 यूनिट्स है। 6 यूनिट जो है, कैसे आया 6 यूनिट, देखिए इसका सॉल्यूशन हम आप लोगों को दे रहे हैं। ओके। सॉल्यूशन में क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर हम लोग का r यूनिट है, कर्व सरफेस एरिया 4πr² ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन के अनुसार, और वॉल्यूम हम लोग का 4/3πr³ है। तो क्वेश्चन के अनुसार 4πr² इक्वल्स टू 4/3πr³, बस इसको कैलकुलेट किए हैं तो यहाँ से हम लोग का 6 आ गया। क्योंकि मुझसे डायमीटर पूछा था क्वेश्चन में, तो रेडियस आया हम लोग का 3, तो डायमीटर हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, डायमीटर ही पूछा था क्वेश्चन में, डायमीटर पूछा था। ओके, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Sorry. If a hemisphere and the cylinder have the same base and same height, then the ratio of their volumes will be. अगर किसी हेमिस्फीयर और सिलेंडर का बेस और हाइट सेम हो, देखिए स्फीयर का या हेमिस्फीयर का हाइट और रेडियस एक ही होता है, तो इसीलिए रेडियस और हाइट सेम है। और अगर सिलेंडर का हाइट सेम हो जाए हेमिस्फीयर का, तो मतलब सिलेंडर का रेडियस और सिलेंडर का हाइट दोनों ही हम लोगों का सेम है। तो इसका बोला क्या है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो हम लोगों को पता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr³ और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका क्या, πr²h। तो h की जगह r बैठाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, πr³ हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h के साथ h की जगह r बैठा देंगे तो πr³। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2/3πr³ इज टू πr³, मतलब 2:3 इसका आंसर होने वाला है। तो 2:3 इसका आंसर है। देखिए वैसे ही किया गया है, रेडियस, बेस रेडियस को r मान लिए, हेमिस्फीयर का हाइट h इक्वल्स टू r हो गया, क्वेश्चन में दिया है। हाइट ऑफ द सिलेंडर h इक्वल्स टू r है, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है, 2/3πr³। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, πr²h, यानी πr² इंटू h की जगह r, πr³। बस दोनों का रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो लोग हिंदी मीडियम में है उन लोगों को भी समझ में आ रहा है। पूरा हमने हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन थोड़ा आप ऑप्शंस देख के हो सकता है कि टफ लग रहा हो कि बहुत कैसा कैसा एक्सप्रेशन में आंसर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन में है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज r यूनिट्स एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज a यूनिट। इफ बोथ हैव द इक्वल वॉल्यूम देन द रिलेशन बिटवीन r एंड a। देखिए एक स्फीयर का रेडियस r है और एक क्यूब का लेंथ दिया है a। अब देखिए दोनों का इक्वल वॉल्यूम्स है, मतलब 4/3πr³ इक्वल्स टू, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, तो यानी a का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमको a और r का रिलेशन निकालना था, मतलब हमको a और r का रेशियो निकालना है। r और a का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इसका आंसर हम लोग का a है। देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3πr³ है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब a³ है। अब क्वेश्चन में दिया है ये चीज़, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो इसी वजह से सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट किया है। पाई की जगह 22/7 बैठा है। कैलकुलेट करने से हम लोग का r/a का वैल्यू आएगा क्यूब रूट ऑफ 21 इज टू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11। आया बात समझ में, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 1:8, देन द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए v1:v2 का वैल्यू दिया है 1:8, तो हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब s1:s2 निकालना है। अब s1:s2 करने के लिए 4πr1² 4πr2² ये करना होगा। अगर हम r1 r2 स्फीयर का वॉल्यूम सॉरी रेडियस समझे तो, दो स्फीयर का अगर हम रेडियस समझे तो ओके। तो इसका आंसर हम लोग का b1:4 होगा। ये है इसका कैलकुलेशन। देखिए v1/v2 r1/r2 का क्यूब यानी 1/8, तो r1/r2 1:2 हो गया। रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया s1/s2 जो कि r1/r2 का स्क्वायर है। बस यहाँ से s1:s2 का रिलेशन निकाल दिए।
तो अगर आप लोगों को बेसिक पता है तो आप लोग डेफिनेटली बोल पाइएगा, ऐसा कोई टफ बात इसमें है। आया बात समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर विथ रेडियस आर यूनिट इज। तो ये तो जस्ट आपका सरफेस एरिया पूछा है, सॉलिड हेमिस्फीयर का पूछा है। तो जब सॉलिड हेमिस्फीयर का पूछा है तो हम लोगों को हेमिस्फीयर का मतलब होता है क्या, स्फीयर का आधा। लेकिन जब सॉलिड का पूछेगा तो हम लोगों का टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। पहले तो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ उसका कर्व्ड का, और जो बेस है, जो बेस तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट है। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर विथ रेडियस 2r इज। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब 2r का क्यूब मतलब 8r क्यूब होगा। तो 4/3, 4 8 जा 32, तो 32/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। जस्ट इसमें फॉर्मूला में बैठाना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड स्फीयर इज 27:8, देन द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया विल बी। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिया है। बोला गया है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड स्फीयर्स, मतलब V1:V2 आपका दिया है 27:8। तो यहाँ से हम लोग R1 R2 निकाल लेंगे। तो R1³/R2³ हम लोग का 27:8 मतलब 3/2। R1:R2 3/2 हो गया। तो हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। तो 4 पाई, तो जब हम लोग का यहाँ पे 3/2 हो गया है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9:4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी होगा, 9:4 इसका आंसर है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे V1/V2 हम लोग का R1/R2 का क्यूब किए हैं। तो R1/R2 का जब क्यूब किए हैं तो क्यूब करने से हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, R1/R2 का क्यूब किए हैं। तो यहाँ पे R1/R2 का क्यूब किए हैं। R1/R2 क्यूब होने से हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27/27 3 का क्यूब होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3/2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का R1/R2 का होल क्यूब 27/8, तो R1/R2 हम लोग का क्या हो गया, 3/2 हो गया। अब सरफेस एरिया में हम लोग जानते हैं 4 पाई R1 स्क्वायर/4 पाई R2 स्क्वायर। तो बस यहाँ पे हम लोग R1/R2 का स्क्वायर किए 3/2 यानी 9/4। तो ये हम लोग का आंसर हुआ। और बच्चों हमने जो ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ये बहुत सारे बुक से सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों कि आप लोग के टेक्स्ट बुक में इतने सारे एमसीक्यूज है नहीं जितना हम करा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं से अरेंज किए हैं। तो हम आप लोगों को बोल दें कुछ क्वेश्चंस कहाँ से हम अरेंज किए हैं, ये मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं से तो बुक से अरेंज किए हैं, तो वो हम आप लोगों को बोल देते हैं। एक है आपका गणित प्रकाश बुक। गणित प्रकाश बुक में हम लोगों का ऑलरेडी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन वो बुक से लगभग सभी टीचर स्कूल में करवा देते हैं। तब भी हम उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरा है स्कूल मैथमेटिक्स का बुक। स्कूल मैथमेटिक्स का बुक जो है इसमें थोड़ा लेवल का क्वेश्चंस रहता है, तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है या बोर्ड के क्वेश्चन को देखते हुए और विभिन्न टेस्ट पेपर को देखते हुए जो क्वेश्चन लग रहा है हम उसको स्कूल मैथमेटिक्स से सेलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा है आपका R.D. शर्मा जो कि CBSE का है। कुछ कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो CBSE, ICSE और वेस्ट बंगाल में कॉमन है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ML अग्रवाल भी। और तीसरा और जो पांचवा बुक है आपका RS अग्रवाल। RS अग्रवाल जो है वो मतलब CBSE के लिए ही यूजफुल है, लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जिसको हम लोगों को करना चाहिए, जिससे हम लोग का नॉलेज बढ़ेगा। आप लोग देखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड में जैसा आ रहा है वो थोड़ा लॉजिकल आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करना होगा। इसीलिए बच्चों आपको इतने सारे बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब बुक्स हैं। हम आप लोगों को ऐसे ही YT पे जितना हमसे समय हो पाएगा हम टाइम निकाल के आप लोगों का हेल्प करेंगे। बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें एवं भरपूर लाभ उठा सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि क्लास कैसा था। ओके, और किसको कितना मिल रहा है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। If the ratio of the curved surface area of two solid sphere is 16:9, then the ratio of their volume will be। अब कर्व सरफेस एरिया दिया है
मतलब R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर 16:9, अब उल्टा हो गया, तो R1 4 हो गया, R2 3 हो गया, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 64:27 हो गया। ठीक है, देखिए हम बिना सॉल्व किए आप लोगों को बता रहे हैं, ऑप्शन ए होगा। तो आपको ऐसे ही फॉर्मूलाज पूरा माथे पे रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। फॉर्मूला भी जिसको याद हो गया वो ठीक कर लेगा, जिसको फॉर्मूला ठीक से नहीं पता है उसी को प्रॉब्लम होगा, तो फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा आप। तो 64:27 ये इसका आंसर। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। If the curved surface area of a solid sphere is 3 times its volume, then the length of the radius will be। यहाँ पे बोला गया है curved surface area of a solid sphere is 3 times। मतलब ये कि solid sphere का curved surface area जो है, मतलब 2 pi r square, total surface नहीं बोला है, is 3 times of its volume, मतलब 3 into 2 by 3 pi r cube, then the length of the radius। अच्छा, यहाँ पे curved बोला गया है, जैसे इसमें बोला यदि एक ठोस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, मतलब वही बोला गया है कि कर्व सरफेस एरिया एक सॉलिड हेमिस्फीयर का अगर 3 टाइम्स होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम हम लोग का 1 यूनिट होगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? तो वॉल्यूम हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 यूनिट होगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ अच्छा स्फीयर बोला है, हम हेमिस्फीयर समझे, सॉरी, हम इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर बोल दिए। स्फीयर है तो इसीलिए यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, वही हम देखें यहाँ पे हम 4 पाई स्क्वायर टाइप किए हैं और यहाँ पे हम 3 पाई आर स्क्वायर बोले कि, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्फीयर है तो डेफिनेटली 4 पाई आर स्क्वायर होगा। आया बात समझ में? वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो बस अब इसको कैलकुलेट किए हैं, यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 1.47 पाई, देन द रेडियस विल बी। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई तो कट गया, अब यहाँ पे 3 है और आर स्क्वायर 147 है। अब 3 से 147 को 3 से डिवाइड देने से जाएगा, चलिए देखते हैं जाता है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे लगता है 49 से जाएगा, 49 इंटू 3 अगर हम करें तो 147 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 49 हुआ, तो हम लोग का रेडियस बोला है, तो आर क्या हो जाएगा 7, तो 7 सेंटीमीटर आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि 3 पाई आर स्क्वायर 147 पाई है, तो बस उसको पाई के जगह पाई पाई कट गया और 3 से डिवाइड दे देंगे तो 49, तो आर 7 हो गया। आया बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट, अच्छा हमने लाइट का कल ही क्लास लिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ये बेसिक है, इसमें आपका कोई लेंस, मिरर या बोल सकते हैं प्रिज्म, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक रिफ्लेक्शन के ऊपर है। मेरा मानना ये है कि आप लोग इसको ज़रूर देखें, अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो आप लोगों के लिए मिरर, लेंस, प्रिज्म से रिलेटेड भी क्लासेस हम देंगे, लेकिन उसमें आप लोगों को अब कमेंट करना होगा, ठीक है? तो अब आप लोग के कमेंट का हम वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर लाइट का भी आप थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए, थोड़ा थियोरेटिकल बता दीजिए, तो आपको कमेंट करना है, ओके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। If the ratio of the total surface area of two hemisphere is 1:4, then the ratio of their volumes will be। क्वेश्चन में बोला गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, तो दोनों हेमिस्फीयर का मतलब यहाँ पे R1 R2 का वैल्यू आपको पता चल गया है, तो R1:R2 क्या होगा, 1:2 होगा। तो वॉल्यूम निकालना है तो 1:8, क्योंकि रेडियस का क्यूब हो जाता है, तो 1:8 इसका आंसर। आया बात समझ में बच्चों? क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। अब देखिए हम लोग, आप लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज क्या होगा? तो रेडियस 7 सेंटीमीटर बोला गया है, तो 7 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, आपको रेडियस बोला है, तो हम लोग जानते हैं 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 इंटू 3, तो 49 इंटू 3 हम लोग का कितना आएगा, 147 आएगा, तो 147 पाई आप लोगों का आंसर है, तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट है, 147 पाई हम लोग का करेक्ट है। आया बात समझ में बच्चों? तो स्फीयर का हमने इतना एमसीक्यू आज डिस्कस किया है, अभी फिल इन द ब्लैंक्स बचा है।
एमसीक्यूज में ऐसा ही टाइप का स्फीयर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है एमसीक्यू से रिलेटेड, अगर एमसीक्यू से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस of a solid hemisphere is 2r units then the total surface area will be, तो total surface area क्या होगा, जब रेडियस 2r है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर है, तो 3 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 आर स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 12 पाई आर स्क्वायर हम लोगों का आंसर है। आया बात समझ में बच्चों, तो 12 पाई आर स्क्वायर ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर विल बी। अब यहाँ पे एक ही चीज़ है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 7 बैठाएंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए आर की जगह 7 बैठा है, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, if the curved surface area is s and volume is v then the relation between v and s, देखिए कर्व सरफेस एरिया s है, अगर वॉल्यूम v है तो v और s का रिलेशन क्या होगा, तो इसको तो सॉल्व करके देखना होगा। इसको सॉल्व करने से 36 पाई आपका आंसर आ रहा है, मतलब एस क्यू बाई वी क्यू वी स्क्वायर इक्वल टू 36 पाई, मतलब सरफेस एरिया का क्यूब और वॉल्यूम का स्क्वायर जो होगा 36 पाई, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन हम आप लोग को दिख रहा होगा, पूरा हम कैलकुलेशन के साथ किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसको फॉर्मूला पता है वो आराम से ये समझ जाएगा। नेक्स्ट है a solid object formed by revolving a semicircle about its diameter is called, इसका आंसर क्या होगा, ये तो बेसिक थ्योरी मतलब कि एक डेफिनेशन बेस्ड हो गया, तो उसको स्फीयर बोले। ये स्फीयर का ही डिफिनेशन था, एक सेमी सर्कल अराउंड इज बाउंड्रिंग डायमीटर 3D सॉलिड्स। नेक्स्ट ओके, प्योर मैथमेटिक्स का क्लासेस हमने लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर और एसोसिएट एंगल्स का कुछ क्वेश्चंस के साथ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिन लोगों ने अभी भी नहीं देखा है वो जरूर जाकर देखें, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है, आप लोग का रिवीजन भी होगा, तो ज़रूर इसको देखें। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 72 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर देन द रेडियस विल बी, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 72 पाई, तो यहाँ पे आपका पाई पाई कट जाएगा, तो आर क्यूब वहाँ से निकल जाएगा, बस कैलकुलेट करना है, तो बस यहाँ पे कैलकुलेट देखिए किए हैं, आर क्यूब हो गया हम लोग का 54, तो आर हो गया हम लोग का 3 क्यूब रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में द नंबर ऑफ सर्फेसेस ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर, तो ये हमको पता है कि 2 होगा, एक कर्व्ड है और एक बेस है, तो यहाँ पे हम लोग का तो इनर और आउटर, आउटर मतलब कर्व्ड हो गया, इनर मतलब नीचे जो हम लोग का भीतर की तरफ का है उसको। द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का अगर हम ये आउटर का ही पूरा बोले तो बेस एक हुआ और एक कर्व्ड हुआ, तो ये भी 2 होगा, कर्व्ड होगा और फ्लैट सर्कुलर प्लेट यानी कि बेस। ओके, और बच्चों हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हम आप लोगों को पूरा गाइडेंस कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप उसमें हमको व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, ध्यान रहे फ़ोन नहीं करना है, चैट कीजिएगा। ओके, और अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस करने हैं तो हमारा एड्रेस देखिए आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, और साथ ही साथ 2 नंबर्स दिया गया है, दोनों नंबर में किसी में भी एक में व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड क्लास वगैरह कुछ करना है तो ज़रूर मुझसे आप जुड़िए। क्लास में आप लोगों को सब फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे, मतलब आप लोगों को फिर अलग से कुछ और मेहनत नहीं करना है, जितना हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो सफिशिएंट है। ठीक है, आप लोगों का मॉक टेस्ट होता रहता है, अभी भी हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं वीक में, तो मतलब महीना में अभी 2 बार, अभी ऑल्टरनेट वीक्स में तो क्लासेस हो ही रहे हैं मॉक टेस्ट के रूप में। आपका टेस्ट पेपर भी कराते हैं क्लास के साथ साथ, रेगुलर टेस्ट वगैरह होता है, एक्स्ट्रा क्लास जब दरकार पड़ता है कि हाँ क्लास देना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा क्लास भी होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में भी हम लोग करवाते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और चार्ज ज़्यादा नहीं है, तो आप एक बार कॉल करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर का जो टोटल सरफेस एरिया है ये हम लोग का क्या होगा, ऑब्वियसली 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ओके,
तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे हम लोग का ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में। और अगला क्लास हम कोशिश कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल को ख़त्म कर दिया जाए और आप लोगों के लिए हम अमोनिया स्टार्ट कर सकें। तो यही मेरा इंटेंशन है, देखते हैं अब जैसा होगा वैसा हम आप लोगों को फिर इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि आज आपका मेहनत ही कल आपका लाइफ बनेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल पवन साइंस एंड मैथ लैब। कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो बच्चों आप जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं आप सब में ये चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, मैं भरपूर लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग अवर वाई टी चैनल। शुभ रात्रि।